everyone, welcome back to Basic Therapy. Today is our day 9 of AFCAT preparation series. We started this series with English section and so far we have covered synonyms, antonyms and idioms and phrases. So if you have missed any of this, do start them from day 1 and I'm sure it will be helpful for you. Now what I've planned for you is, in order to prepare you well for comprehension, complete the passage and error detection, I will be introducing you to the 100 grammar rules with which you will be able to nail all these 3 sections in your examinations. So from today onwards, we will be looking at these 100 rules and then we will practice some comprehension, complete the passage and error detection. It is rightly said that if you know the rules of the games well, then you will nail it each and every time. So without further ado, let's get started. Talking about these grammar rules, I would like to tell you that they are not only going to help you in your AFCAT exam but other competitive exams as well, which include English as their subject, like CDS or SSC CGL. The format of the question paper will be the same, so grammar is going to help you in any form. So I would like you to go through this series of 100 grammar rules really well. So let's get started with our first rule. So our first rule is, some nouns always take a singular verb. So before we get started, I'll quickly tell you what noun is. Noun is name, place, animal, thing. आपने ये गेम खेला होगा स्कूल में होंगे तब. Name, place, animal, thing. So anything which has a name of a place, animal, thing is a noun. So some nouns always take a singular verb. Verb means action, something that describes action. So एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, she has given advices. So यहाँ पे जो advices है वो wrong है, because what does it say? Some nouns always take a singular verb. So advices नहीं हो सकता है, advice ही होगा. So she has given advice. One advice, many advice, not advices. Next is, the poetry are beautiful. The poetry is beautiful. So poetry be it one poem or 10 poems, it is always in a singular form. So the poetry is beautiful. There are other such words also given for reference, like physics, stationery, advice, abuse, mathematics, news, ethics, furniture, fuel, rice, economics, repair, poetry, information, gram, issue, athletics and classic. So these are these words जो इनके plural form में नहीं use करते हैं हम when it is associated with a noun. I hope the first rule is clear to you. तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए इस टाइप के sentences, I hope you are able to attempt them correctly. Rule number 2 is, some nouns are always used in plural form and always take a प्लूरल वर्ब. अभी पहले हमने देखा कि कुछ नाउन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और कुछ अभी देखेंगे कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. एग्जाम्पल, वेयर आर माई शॉर्ट्स. अभी एक शॉर्ट होती है बट इट इज नॉट कॉल्ड वेयर इज माई शॉर्ट्स नहीं होता है, वेयर आर माई शॉर्ट्स, बिकॉज शॉर्ट्स इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स. आर्म्स गुड्स इज कॉस्टली. नो, आर्म्स गुड्स are costly. A pair of scissors. एक scissors होती है but उसको scissors नहीं बोलते, उसको बोलते हैं pair of scissors. A pair of spectacles. A pair of trousers. A pair of shorts. Measles. Are measles. Goods. Are goods. Are arms. Premises. Are. Premises is नहीं होता है. So these are some examples of verbs जो सिर्फ plural form में ही use होते हैं. तो इसलिए शॉर्ट्स आए, ट्राउजर्स आए, सीजर्स आए, स्पेक्टेकल्स आए, तो यू आर सपोज टू यूज दी आर फॉर्म ऑफ इट एंड नॉट इज. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. रूल नंबर 3, collective nouns are used both as singular and plural. It depends on the usage. So collective nouns क्या होता है? मतलब one word form में नहीं होता है, उसको collective nouns बोलते हैं. कि in total, जैसे कि कोई एक सिंगर है, फिर 2 सिंगर्स आते तो हम उसको डुएट बोलते हैं. वैसे पूरा अगर बहुत सारे सिंगर्स आए तो उसको हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं. सो दिस इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव मतलब बहुत सारे सिंगर्स मिला के एक ऑर्केस्ट्रा बन जाता है. सो
इस हिसाब से द कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल एंड सिंगुलर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ यूज इट carries. So example देखते, the jury was divided in their opinion. No, the jury were divided in their opinion. तो jury आपको पता है जो कोर्ट में होती है, jury who decides overall. So they were divided in their opinion. Now the team have not arrived yet. The team has not arrived yet. So कुछ collective nouns है, team, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, जूरी, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी एंड पब्लिक. तो जैसे देखो यहाँ पे वर फॉर्म यूज किया है, दैट इज प्लूरल फॉर्म यूज किया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज किया है डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पे टीम एज अ होल कंसिडर की है, हैज नॉट अराइव्ड येट, एंड द जूरी वर डिवाइडेड, मतलब डिवाइड किया है इसलिए द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. So this is how you have to see collective noun कौन सा है and उसका usage कैसे हो रहा है sentence में, depending on that you are supposed to use singular या फिर plural form of the verb. Rule number 4. Some nouns are single in meaning but they are used as plural nouns and take a plural verbs. So just because it doesn't end with es or s doesn't mean it is not plural in its form. For example, the word cattle. So one cow, many cattle होता है. So the example देखते हैं, the cattle is grazing in the ground. ये आपको ऐसे लगेगा कि एक cattle है यहाँ पे, but no, it talks about many cows. So the cattle are grazing in the ground is the correct answer here. Next is police has controlled the situation. The police have controlled the situation because one is policeman and many is just police. So आपने confused नहीं होना है. You should be able to identify this plural noun and thus it will carry a plural verb. Examples देखते हैं plural nouns के. Vermin है, peasantry है, artillery, people, company, police, clergy, sentry, cattle. So अगर ऐसे टाइप के आपको वर्ड्स आते हैं तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इज विथ आर, हैज विथ हैव. सो ये याद रखना है आपने. आपको एक बात बोलूंगी कि ये जो रूल्स है ग्रामर के, ये वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है. आप इसको ऐसे थियरी के हिसाब से मत पढ़ो. ये जनरली आप ऐसे स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए या फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हो. आप एसएसबी जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे बाहर किसी दूसरी कंपनी में, तो वहां पे भी इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, लेक्चरेट्स होते हैं. तो उसमें भी ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये काफी मैटर करती है एंड इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर होगा या फिर जो आपको जज कर रहा है वहां पे बैठ के, दे विल नोटिस दिस स्मॉल थिंग्स. सो अगर आप ये वैसे ही जनरली इम्प्रोवाइज करोगे तो आपका वो एक सबकॉन्शियसली जो ग्रामर है बहुत इम्प्रूव हो जाता है एंड एग्जाम में आप जल्दी से पकड़ लेते हो कि हाँ ये गलत है सेंटेंस. तो कीप प्रैक्टिसिंग दिस एज इफ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. तो आपको जैसे ही सेंटेंस पढ़ोगे आपको क्लिक हो जाएगा, नहीं ये गलत है, ये इसमें कुछ तो गड़बड़ है, फिर आप ढूंढ सकते हो उसमें क्या गड़बड़ है वो. तो फिफ्थ रूल इज देयर आर नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर. ये सब याद रखना. लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर. When they are preceded by a numeral, मतलब कोई नंबर के बाद आता है, they remain unchanged in form. एग्जाम्पल देखते हैं. इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स. सो ईयर्स नहीं आएगा, सिर्फ ईयर आएगा. सो बी इट 3 year, 5 year, 10 year, ईयर ही रहेगा. इट विल नॉट बिकम ईयर्स. सिमिलरली आई हैव 5 dozens ऑफ शूज. नहीं, आई हैव 5 dozen ऑफ शूज. सो ये जो यूनिट्स होते हैं दे आर नेवर यूज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म. और जब नंबर डजन्स ऑफ शूज बोल सकते हो बिकॉज वहां पे नंबर ऐड नहीं किया गया है. बट अगर कोई नंबर ऐड होता है जैसे 5 dozens, नहीं होगा. 5 dozen, 3 dozen, 11 dozen, मतलब नो मैटर द नंबर इट विल स्टे डजन. ईयर्स ऑफ हार्डवर्क्स बोल सकते हो बट 3 year,
5 ईयर, जैसे ही नंबर ऐड होता है यू हैव टू यूज इट इन देयर सिंगुलर फॉर्म एंड नॉट द प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर, 2 पेयर, 4 dozen, 5 year, 6 million, 800, 9 foot and 10,000. जैसे ही नंबर ऐड होगा दे विल स्टे एज इट इज, बट अगर आप बिना नंबर के यूज कर रहे हो देन इट कैन बिकम मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, फीट, thousands, years, dozens, pairs and meters. So keep this in mind. Rule number 6. Some nouns have one meaning in singular and another meaning in plural. मतलब जैसे वो अपने प्लूरल फॉर्म में चला जाता है उसका मीनिंग बदल जाता है. So जब आप यूज कर रहे हो तो देखना है कि वो वहां पे वो वर्ड एज अ सिंगुलर मीनिंग यूज हो रहा है या प्लूरल मीनिंग यूज हो रहा है. तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है. वर्क होता है तो उसको मीनिंग जॉब होता है, बट जैसे वर्क्स हो जाता है तो उसका मीनिंग कंपोजिशंस या फिर फैक्ट्रीज हो जाता है. फायर वर्क नहीं होता, फायर वर्क्स होता है. अथॉरिटी, कमांड. अथॉरिटीज मतलब पर्सन्स इन पावर. एडवाइस, काउंसिल. एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन. आयरन इज अ मेटल. आयरन्स मीन्स फेटर्स या फिर चेन्स. रिस्पेक्ट मीन्स रिगार्ड. रिस्पेक्ट्स मीन्स compliments. Air, atmosphere. Airs मतलब proud. Good means wise. Goods means property. Content, satisfaction. Contents means things contained in something. Force, strength. Forces means army. तो इस हिसाब से there are many words जिसका singular meaning अलग होता है and plural form में meaning अलग होता है. तो आपको sentence के हिसाब से जज करना है कि वहां पे प्लूरल वाला मीनिंग आएगा या फिर सिंगुलर वाला मीनिंग आएगा. रूल नंबर 7. while using everybody, everyone, anybody and each, the pronoun of the masculine or the feminine gender is used according to their context. मतलब ओवरऑल जब किसी की बात कर रहे हो आप, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच, तो अगर उसमें फीमेल हो या मेल हो, मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, तो उस हिसाब से आपको प्रोनाउन यूज करना है. मतलब अगर मैस्कुलाइन हो तो आप यूज कर सकते हो ही, हिज, हिम. फेमिनाइन हो तो शी, हर, हर्स, इस हिसाब से. सो एग्जाम्पल देखते हैं. आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द गर्ल्स इन दिस प्रैक्टिस. सो ईच ऑफ द गर्ल्स है तो आगे वाली सेंटेंस में हर आएगा, शी आएगा, हर्स आएगा. बट व्हेन द सेक्स इज नॉट मेंशन्ड, मतलब अगर आपको पता ही नहीं है कि ओवरऑल क्या है, if the crowd is masculine or feminine or both, we use the pronoun of the masculine gender only. Anyone can win if he tries. if she tries नहीं, if he tries यहाँ पे masculine gender ही use होगा. So एक और एग्जाम्पल देखते हैं. each of the 6 girls in the team has finished their task. तो यहाँ पे their task नहीं आएगा, her task होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है. अगर each होगा, everybody होगा, everyone, anybody आएगा, and then there is a mention of a masculine or a feminine gender, then उसका respective pronoun ही use होगा. अगर female होगी तो her use होगा, she use होगा, या male होगा तो he, his, him use होगा. and mention ही नहीं किया है तो it will be masculine gender, it will be considered as a masculine gender only. फिर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि anyone में female भी आ रही है तो why do we use he. तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है कि anyone can win if he tries, ऐसे ही आएगा. 8th rule is people are confused and thus make mistakes in the use of certain nouns. So example के थ्रू देखते हैं कि कैसे है. family members नहीं होता है, members of family. English teacher नहीं होता है, the teacher of English. free ship, free studentship होता है. lecturership नहीं होता है, lectureship होता है. cousin brother या cousin sister नहीं होता है, सिर्फ cousin होता है. हम ऐसे नहीं she is my cousin ऐसे नहीं बोलोगे कि she is my cousin sister. You have to use it only cousin. So the word wages means punishment in singular form. मतलब wages का भी वैसा ही है कि singular form में
अगर यूज करो तो वेजेस का मीनिंग अलग होता है, एंड एज अ प्लूरल फॉर्म वेजेस यूज करो तो उसका मीनिंग अलग होता है. द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मतलब यहाँ पे वेजेस मीन्स पनिशमेंट, एंड द वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स हैव बीन रेज्ड. वेजेस मतलब उनकी सैलरी. तो इस हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से आपको नाउन का यूज करना है. और अगर आप सेंटेंस अगर एरर डिटेक्शन में ऐसे आए आपको वर्ड्स फैमिली मेंबर्स, इंग्लिश टीचर, फ्रीशिप, लेक्चररशिप, कजन, ब्रदर और सिस्टर, तो आपने याद रखना है कि उसका यूज ऐसे नहीं होता है इन द करेक्ट फॉर्म. मेंबर्स ऑफ फैमिली, द टीचर ऑफ इंग्लिश, फ्री स्टूडेंटशिप, लेक्चरशिप, या सिर्फ कजिन यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर एरर डिटेक्शन में आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए, एना इज जेज कजिन सिस्टर, तो आपको क्विकली वहां पे देखना है कि कजिन सिस्टर लिखा है मतलब गलत है. एना इज जयस कजिन, इतना ही आना चाहिए. द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस. अभी प्रोनाउन मतलब द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जैसे ही, शी, इट, दे. तो जैसे ये वर्ड्स होते हैं, ये प्रोनाउंस आते हैं, तो ही का हम हिज कर देते हैं, शी का हर कर देते हैं, इट का दे कर देते हैं, या दे का देर कर देते हैं. तो इस हिसाब से हम अगर इन प्रोनाउंस को इस हिसाब से यूज करते हैं, तो वन अगर प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसको वंस इस हिसाब से यूज करना है. एग्जाम्पल, वन मस्ट फिनिश हिज वर्क इन टाइम इज अ रॉन्ग सेंटेंस. वन मस्ट फिनिश वंस वर्क इन टाइम. जहां पे भी वन आए वहां पे वंस लिखना है अपने. हीज, हर, इट, दे कुछ भी आए तो वो गलत होगा. 10th rule is the pronoun must agree with its antecedent in person, number and gender. So antecedent मतलब पहले आने वाला, and precedent मतलब बाद में आने वाला. So क्या बोला है यहाँ पे, the pronoun must agree with its antecedent in person, मतलब उसके पहले आया हुआ relation person के related हो, number के related हो या gender के related हो, it should obey it, the pronoun. So example के through देखते हैं. Every student must bring his backpack. Every student, यहाँ पे gender mention नहीं किया गया है, so we will be using the masculine form of it, which is his. Every student must bring his backpack. यहाँ पे his use किया है, their use नहीं किया है, because every use है. यहाँ पे every होता है तो हम singular form में ही use करते हैं, because we are talking about single person. So every student must bring his backpack. Second example is all students must do their homework. यहाँ पे all का है, students must do their homework. their मतलब सबने अपना अपना homework करना है. Each of the girls must carry her own bag. जैसे यहाँ पे gender mention किया है girls, तो यहाँ पे her own bag आएगा. Each word use किया है इसलिए singular form आएगा. याद रखना, ईच, एवरी ये वर्ड्स आते हैं तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है ऑफ द जेंडर दैट इज मेंशन्ड. इफ द जेंडर इज नॉट मेंशन्ड यू विल ऑलवेज यूज अ मैस्कुलाइन जेंडर देयर. Rule number 11, the word who, it denotes the subject, and the word whom is used for the object. So who is the subject of the verb. So who gave you my contact details. So यहाँ पे answer जो आएगा, the name of the person, that is who. This is who I am. Who मतलब it always talks about the subject, मतलब the person who is involved in the sentence, and whom it talks about the object of the verb or preposition. मतलब अगर कोई action हो या फिर कोई preposition हो उसके related जो ज़्यादा information देता है, that is whom. Whom should I call? For whom did you get my contact details? So this is how you are supposed to use who and whom. तो जो subject होता है sentence का, आपने पढ़ा होगा subject and predicate. Subject मतलब जो sentence का main part होता है, and predicate means something that helps the subject to give more information about the subject. So who, it always denotes the subject, and whom, it always denotes the object. Rule number 12, when a singular and a plural nouns are joined by or nor, the pronoun must be plural.
एग्जाम्पल, either the leader or his followers failed in his cause. यहाँ पे the leader is in its singular form, his followers is in plural form, they are joined by the word or. So इसका जो pronoun होगा, this is the pronoun, it should be in its plural form and not singular form. So यहाँ पे his होगा वो गलत होगा, it will be their cause. So either the leader or his followers failed in their cause. यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, either the teacher or his students failed in their job. Rule number 13, each other are used when there are two subjects or objects and one another when there are more than two. So अगर किसी दो लोगों के बीच में कुछ बात करनी है तो you can use each other, या दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है तो you can use each other. But once you know there are more than two, you are supposed to use one another. Example, राधा एंड कृष्णा लव्ड ईच अदर. यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है इसलिए हमने यूज किया ईच अदर. द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास लव वन अनदर. अभी स्टूडेंट्स मतलब देर आर मोर देन टू स्टूडेंट्स, सो दे लव वन अनदर. याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 14 is there are certain verbs given: apply, resign, drive, exert, absent, enjoy, acquit, avail, pride. And when you come across these transitive verbs, they always take a reflexive pronoun with them. Now what is a reflexive pronoun? If you add the word self after my, your, him, her and it, for example, myself, yourself, himself, herself, itself, and selves to are and them, that is ourselves and themselves, then such words are called as reflexive pronoun. For example, he wanted to impress her, so he baked a cake himself. Now impress is a transitive verb here which will carry a reflexive pronoun, that is himself. Enjoy yourself, apply yourself, drive yourself. I hope this is clear to you. Rule number 15, when two or more singular nouns are connected by either or, neither nor, and or, the pronoun used is singular. So example, either Ram or Sham will get his point in the discussion. So either or use हुआ है यहाँ पे. So either Ram or Sham will give his point in the discussion. So his is singular form. पहले हमने क्या देखा था, अगर दो वर्ड्स जो है वो एक सिंगुलर एंड एक प्लूरल को ऐड होता है और के थ्रू, तो हम उसका प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं. बट यहाँ पे दोनों सिंगुलर नाउन्स है, राम भी सिंगुलर है, शाम भी सिंगुलर है, एंड फिर और को ऐड किया है, तो जो आएगा यहाँ पे प्रोनाउन वो होगा अपने सिंगुलर फॉर्म में. ये याद रखना है, छोटा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजन हो सकती है. Either Ram or Sham will give his point in the discussion. Neither A nor B will give up on his position. So in this way, अगर two singular या two or more singular are connected by either or, neither nor or, तो आपने हमेशा singular use करना है. बट अगर एक singular and एक plural form में use हो तो आपने plural form का ही use करना है. Question 16, whose this word is used for living persons, whereas which is used for lifeless objects. So example, which novel are you reading and whose bag is lying there. So अगर whose word use होता है तो वो living thing के लिए होता है, living being के लिए होता है, and which is lifeless object. छोटा सा difference है. When a pronoun stands for a collective noun, it must be in the singular form, and in the neuter gender if the collective noun is viewed as a whole. But if it gives an idea of different entities, plural pronoun is used. So यहाँ पे example देखो, the jury gave its verdict. So यहाँ पे the jury as a whole use किया गया है. They are talking about the entire collective noun as a whole. So यहाँ पे we have used its verdict and not his verdict or her verdict. जैसे यहाँ पे बताया गया है कि न्यूटर जेंडर इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल. तो न्यूटर मतलब ना मेल ना फीमेल. इट. नाउ द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. नाउ हियर द जूरी इज यूज्ड एज अ डिफरेंट एंटिटी, सो वी हैव यूज्ड इट वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. So we have used the plural pronoun for it.
अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वर यहाँ पे इज अ वर्ब एंड देयर इज अ प्रोनाउन। सो हमने जो फर्स्ट रूल सीखा था, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो इट वॉज द जूरी वर डिवाइडेड बिकॉज इट वॉज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को वी ऑलवेज यूज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड यहाँ पे इफ द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर, सो द प्रोनाउन हियर इज देयर। रूल नंबर 18 हमें ये बताता है कि हम द वर्ड सम एंड एनी का यूज कैसे करेंगे। अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर किसी सेंटेंस में किसी चीज की क्वांटिटी या डिग्री बतानी है तो हम सम वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल बाय सम मैंगोज। वेराज अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो उसमें हम एनी का यूज करेंगे। जैसे आई शेल नॉट बाय एनी मैंगोज, नॉट ऐड करने से ये सेंटेंस निगेटिव बन गया है, इसलिए हम यहाँ पे सम का नहीं एनी का यूज करेंगे। सो आई शेल नॉट बाय एनी मैंगोज। Rule number 19. If pronouns of different persons are to be used together in a sentence, the serial order of the person should be as follows. That is second person, third person plus first person. मतलब अगर कोई normal sentence में बात करनी हो तो आप ऐसे बात करोगे, you, she and I will go together for the party. यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, तो you is the second person, she is the third person and I is the first person. So sequence कैसे रहेगा हमारा, second person, third person and then first person. So you, she and I will go together for the party. यहाँ पे you second person है, she is the third person and I is the first person. इन द सिमिलर वे अगर कोई मिस्टेक या फिर फॉल्ट एक्सप्रेस करना हो या फिर गिल्ट एक्सप्रेस करना हो किसी सेंटेंस में, मतलब वो निगेटिव सेंटेंस हो, तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन शी और हर। आई, यू एंड हर आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। अभी आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, सपोज आप और मैं बात कर रहे हैं, तो मैं बन गई फर्स्ट पर्सन। हमेशा खुद को फर्स्ट पर्सन अज्यूम करना है। जिससे आप डायरेक्टली बात कर रहे हो वो बन गया सेकंड पर्सन, एंड जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो हो गया थर्ड पर्सन। सो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। मतलब क्या सीक्वेंस रहेगा इसका, 2 3 1, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। एंड अगर निगेटिव सेंटेंस हो जिसमें फॉल्ट या गिल्ट या कोई कन्फेशन हो तो उसमें सीक्वेंस रहेगा 1 2 3, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। रूल नंबर 20 इज द यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ये वर्ड है फ्यू, इसके आगे सिर्फ एक आर्टिकल ऐड करने से उसका मीनिंग काफी बदल सकता है। फ्यू इट मीन्स नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नथिंग। A few it means some at least and is a positive form of sentence. The few it means whatever there is left. Example देखते हैं, a few men are free from fault. So a few की जगह नहीं आएगा, few means not many men are free from fault. I have already read a few books that are in the library. So I have already read the few books that are in the library, means whatever there is in the library I have read it. Few teams will qualify for the state tournaments. A few teams will qualify for the state tournaments. So यहाँ पे आपने देखना है कि सेंटेंस कैसा है। अगर पॉजिटिव है, कहाँ पे हम नॉट मेनी यूज करना चाहते हैं, कहाँ पे हम सम एटलीस्ट यूज करना चाहते हैं, या फिर कहाँ पे हम whatever there is यूज करना चाहते हैं, उस हिसाब से you are going to use the words few, a few and the few. रूल नंबर 21 हमें सिखाएगा कि हम लेस एंड फ्यूअर वर्ड्स कैसे यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। अगर हम किसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लेस वर्ड यूज करेंगे, और हम किसी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फ्यूअर वर्ड यूज करेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। No less than 20 students got recommended. Not less than 20 students. So यहाँ पे नंबर है 20, so हम यूज करेंगे fewer.
So no fewer than 20 students got recommended is the correct form of sentence. फिर आता है there are no fewer than 2 liters of milk in the cartons. अभी यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो नो फ्यूअर देन मतलब नो लेस देन 2 liters ऑफ मिल्क इन द कार्टन. देयर इज नो लेस देन 2 liters ऑफ मिल्क इन द कार्टन. सो आपने देखना है कि कहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है और कहाँ नंबर की बात हो रही है. अगर क्वांटिटी की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे 2 लीटर ऑफ मिल्क की बात हो रही है, तो हम नो लेस यूज करेंगे. और जैसे यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, 20 नंबर्स मतलब 20 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हम नो फ्यूअर यूज करेंगे. Rule number 22 talks about the most common mistake that we do, that is use of the words elder and older. So अगर हम अपनी खुद की फैमिली में किसी दो इंसान के बीच में एक एज की कंपैरिजन करेंगे तो हम एल्डर वर्ड यूज करेंगे. बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की या पर्सन की बाहर कंपैरिजन करेंगे तो उसको ओल्डर वर्ड का यूज करेंगे. एग्जाम्पल, सैम इज माई ओल्डर ब्रदर नहीं हो सकता. सैम इज माई elder brother because Sam belongs to my family. Now this tree is elder than 30 years. So यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं एंड वहां पे आएगा ओल्डर. ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा ओल्डर यूज करना है, एंड कोई पर्सन बाहर की फैमिली से बिलोंग करता है तो हम उसको ओल्डर बोलेंगे. माई फ्रेंड इज ओल्डर टू मी देन 2 years. बट सेम फैमिली की बात होगी तो सैम इज माई एल्डर ब्रदर. अब जैसे हमने फ्यू के बारे में देखा था, वैसे 23rd रूल हमें लिटिल के बारे में बताता है. दैट इज हाउ टू यूज द वर्ड लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. तो जैसे फ्यू के आगे हमने आर्टिकल ऐड करके उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वैसे ही लिटिल के आगे हम अगर कोई आर्टिकल ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग भी थोड़ा सा डिफर करता है. देखते हैं कैसे. जैसे लिटिल होगा तो हम बोलेंगे इट इज हार्डली एनी, a little, some या do not much, the little, not much but all there is. So example देखो, there is a little hope of his recovery, that is there is some hope of his recovery. The little water left can be of great use, मतलब not much but there is still some water and it can be of great use. इस हिसाब से आप यूज करोगे few के बारे में भी and little के बारे में भी. Rule number 24, when a comparison is made by using a comparative followed by than, the word other must exclude the thing compared from the class of things with which it is compared. For example, she is better than any woman, she is better than any other woman is the correct thing. You cannot say she is better than any woman. So आप पूरे क्लास को नहीं यूज करोगे कंपैरिजन के लिए, आप यूज करोगे अदर वुमेन के कंपैरिजन में. यू आर नॉट कंपेयरिंग शी विथ ऑल वुमेन, दैट इज फॉर ऑल क्लास ऑफ वुमेन. शी इज बेटर देन एनी अदर वुमेन. सो यहाँ पे वही बताया गया है, इफ कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग अ कंपैरेटिव फॉलोड बाय दैन. यहाँ पे कंपैरिजन यूज किया है बेटर दैन. द वर्ड अदर मस्ट एक्सक्लूड द थिंग कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास. मीन्स अदर वर्ड यूज करके आपने वो क्लास से उसको डिफ्रेंशिएट करना है. सो शी इज बेटर देन एनी वुमेन आएगा सेंटेंस आपको एरर डिटेक्शन में, तो यहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज रॉन्ग. शी इज बेटर देन एनी अदर वुमेन इज द राइट सेंटेंस. Rule number 25, than is used in the comparative degree but with words like superior, inferior, senior, junior, prior, anterior, posterior and preferred to is used. मतलब अगर हम ये words यूज करके किसी दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने either prefer to यूज करना है या फिर to वर्ड यूज करना है, सिर्फ to. जैसे A इज सीनियर दैन B, ये गलत है. A इज सीनियर टू B. I प्रेफर योगा दैन जिम, ये गलत है. I प्रेफर योगा टू जिम, ये सही है. सो आपने याद रखना है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स हो तो आपने दैन का यूज नहीं करना है कंपैरिजन के लिए, आपने टू का यूज करना है. तो इस तरीके से हमने आज के 25 रूल्स देखे. आई नो काफी ब्रेनी हो गया होगा आज का सेशन, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो गया होगा बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आपने रूल्स एकदम ऐसे डिटेल में देखे होंगे सारे. बट जैसे हम
ये सारे 100 के 100 रूल्स कंप्लीट करेंगे एक बार, और हम जब सेंटेंसेस देखेंगे एरर डिटेक्शन के लिए या फिर कंप्लीट द पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तब आपको काफ़ी इजी जाएगा, आपको ये सारे रूल्स याद आ जाएंगे। तो आज मेरे साथ आपने पढ़ लिए हैं, एक बार और रिवाइज कर लेना इसको, एंड दैट्स इट। आपको आ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस के थ्रू ये आप आंसर्स इजीली आप टिक कर पाओगे। So thank you for practicing with me today and I shall see you in tomorrow's lecture. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आपने मेरे लिए इतना किया तो। इट्स फ्री एंड इट विल ऑलवेज बी फ्री, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।